Okay, let's get started with the brief introduction of the topics that we are going to cover today. Rather than which we have covered actually, and we are going to just give an idea today. हमने शुरू किया था rectifiers से ही, which was an application of the diode, right? ठीक है? So first point that I want to mention, ये जो आपकी PPT है, most likely I may share this with you also, but may not. So what you have to do is that you have to make sure you note down the key points of the slides while I am explaining. It is very important for you, okay? Don't think I will share and done. I may not share. Number one. Number two, this may not be the best way of making a PPT because in a presentation your points should be actually crisp and clear. But I at times have used an explanation as a paragraph for some parts so that it is easy for you to understand, okay? So do not follow this presentation for making your final presentation or some other presentation because your presentation should be actually very crisp and clear. ठीक है ना, उसमें bullet points होने चाहिए, छोटे points होने चाहिए, paragraph बड़े-बड़े नहीं होने चाहिए. So you may find long paragraph, but that is okay, that is for your benefit. So we have realized that हमारे rectifiers का काम है AC को DC में convert करना primarily. Now there are different types of rectifiers जो हमने देखे past में. We have had half wave rectifier, full wave rectifier, and bridge rectifier. Okay. क्या issue क्या? So after seeing the basics of diodes, what we have to move towards its applications. And rectifier in itself is one of the applications of a diode, okay? Another application can be to use a diode as a voltage regulator. If you remember, मैंने आपसे कहा था कि जो हम पावर सप्लाई बनाते हैं, पावर सप्लाई में आपका प्रैम भी आएगा. First thing, do you have a diagram of that power supply over there? पावर सप्लाई की डायग्राम, हाँ हमारे नोट्स में है वो. I remember diagram of a power supply मैंने खुद बनवाई थी आपसे. वो ब्लॉक डायग्राम, पावर सप्लाई की वो ब्लॉक डायग्राम, जहां पे फर्स्ट ब्लॉक होगा उसका रेक्टिफायर, ठीक है? एंड देयर वाज अ ब्लॉक बाय द नेम ऑफ रेगुलेटर. है वो कहीं डायग्राम? वोल्टेज रेगुलेटर, हाँ भाई ये, ठीक है ना? राइट. सो यू ऑल हैव दैट डायग्राम. कहां पे किसके बाद है? जहां पे हमने रेक्टिफायर एफिशिएंसी को डिस्कस किया है उसके बाद. Anyways, so that is there. So what we are going through now is this voltage regulator. Voltage regulator सर्किट का काम क्या होगा? वोल्टेज को रेगुलेट करना. मेरी बात समझिए. हमने एक डायोड को लिया, उससे रेक्टिफायर बनाया. रेक्टिफायर ने हमें पल्सेटिंग डीसी दिया, ठीक है? पल्सेटिंग डीसी के बाद हमने उसको फिल्टर के थ्रू पास किया सो दैट हमें एक वो पल्सेटिंग का जो फैक्टर है वो खत्म हो जाए. बट लेकिन फिर भी rather than getting a fixed DC value, हमारे पास DC would be like this straight line. DC की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है by the way? 0. Because फ्रीक्वेंसी उस चीज की मापते हैं जो साइक्लिक होती है. Like AC सिग्नल ये है, इसका कुछ पीरियड होगा T, so this will be one cycle. Likewise मोर नंबर ऑफ टाइम जितनी बार खुद को रिपीट करेगा वो इसकी फ्रीक्वेंसी है. जब किसी चीज का कोई साइकिल है ही नहीं है, कंटिन्यूअस है, फिक्स्ड वैल्यू है इसका, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, ठीक है? सो डीसी वुड बी लाइक दिस, से दिस कैन बी 10 वोल्ट और 5 वोल्ट व्हाटएवर. लेकिन ये आइडियल केस है. फिल्टर के बाद आपको डीसी जो मिलती है वो कुछ इस तरह की मिलती है. ऑल्दो ये इस पल्सेटिंग डीसी से तो बेटर है, लेकिन अभी भी इसको हम प्योर डीसी नहीं कहेंगे, ठीक? या हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमें जरूरत है एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन. इट मे बी लाइक फॉलिंग या इसका स्लोप हो कुछ. तो देयरफॉर वी नीड अनदर सर्किट बाय द नेम ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर जो एग्जैक्टली इसको एक फिक्स्ड वोल्टेज वैल्यू पे मेंटेन करेगा, ठीक है ना? So this is the secret how we see that
certain devices perform exactly the same way because उनके circuits में अंदर से voltage regulator लगा होगा which ensures कि voltage fixed लगे. Aşağı gaya यासा stabilizer सुना AC curve. सुना सन तब मकसद क्या है सुना तो वो हम continuously voltage. Do you know what's a stabilizer? Voltage stabilizer? हाँ. नहीं आपको भी जो गैर शुरू फ्रिज ऐसा फ्रिज स्पेक्टिंग अक्सर ऐसा लगभग डब्बा हुआ था ना voltage था ऊपर. Modern refrigerators have that inside inbuilt, but we used to have those voltage stabilizers on top of these, especially refrigerators. They need it for sure for the proper operation. ठीक है? So यहाँ पे DC में हम उसको करेंगे voltage regulator. कुल मिला के काम same है कि voltage maintain करना. ठीक है ना? Now we have here two types. या तो discrete transistors से हम voltage regulators बनाएंगे या तो IC से. We may not go deep into this, but I just want to have an idea of voltage regulation क्या चीज है. वहीं पे आपके लिए एक असाइनमेंट है. voltage regulation क्या है? इसकी डेफिनेशन चाहिए मुझे आपसे. Voltage, what is voltage regulation for a DC circuit? What do you mean by voltage regulation for a DC circuit? ठीक है? Voltage regulation से क्या मुराद है? Now when we talk about discrete transistor regulators, you may have series voltage regulators, current limiting circuits, shunt voltage regulators. And talking about the IC voltage regulators, IC क्या होता है? IC क्या होता है? Integrated circuit. मतलब जो आपने IC last time, I think digital में भी आप ICs देख रहे हैं ना? So कुछ regulators आते हैं बाज़ाब्ता एक पैकेज में, integrated circuit पैकेज में आते हैं. So those types of regulators are called as IC regulators, integrated circuit form में आए. उसके certain components होंगे, comparator circuit, reference voltage, control circuitry और load protection. But आपने तो ये cover नहीं किया होगा obviously, I understand. Okay. Now this is an important slide for you. Let's mark it as important that there IC form regulator will be a 3-terminal device. Okay? ये जो हमारा IC वाला, हम IC वाला बाकी हमने नहीं पढ़े या बाकी हम नहीं जा रहे, हम directly we are diving into IC regulators. ठीक है? Although आपके सिलेबस पे ताकि मैं सिलेबस करूँ, आपके सिलेबस में बस एक लाइन है, voltage regulation. But आप समझ भी तो आना चाहिए voltage regulation है क्या? So that's why we have at least 4, 5, 6 slides of this. Now this is a 3-terminal device. If you will see its package, it will look something like this. कुछ इस तरह की IC होगी. इसके 3 टर्मिनल्स होंगे. ठीक है? इशा का सांग स्टील पतरा पत्ते ना और फिर IC पैकेज लगे and इसके 3 टर्मिनल्स होंगे. Now one terminal can be ground. This can be your input, this can be your output. Okay? So इसका मतलब अगर आप सर्किट में लगाएंगे तो इस पिन से आपको इनपुट देना है, यहाँ से आप अपना आउटपुट ले सकते हैं, ग्राउंड विल बी कॉमन. वही चीज यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है. That this will be your input voltage VI, which is unregulated. इसका मतलब उसका वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकता है. ये वोल्टेज रेगुलेटर इसको इंश्योर करेगा कि ये हमेशा, सपोज फॉर एग्जांपल इफ इट रेंजेस बिटवीन 4.5 to 5.5 2 मिनट के लिए, इसका काम होगा यहाँ पे मेंटेन करना 5 वोल्ट. That is the job of a voltage regulator. So it will ensure that it will deliver a 5 volt voltage to the load. Now there can be many things, many specifications. उसकी वजह से उसका number change like 74008 क्या है? Depending upon the voltage value, इसके numbers और उसकी specification भी change होगी. Like for example, the range of the input voltage जिसके लिए आप ये regulator use कर रहे हो, ठीक? या load कितना है, उस पे भी डिपेंड करेगा.
Now, the next point which we are going to cover is your limiting circuits. So वो जो एक word है आपके syllabus पे, उसके लिए अब तक जो हमने कवर किया क्लास में वो काफी एक अंडरस्टैंडिंग उससे आ गई आपको कि वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या है. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली मेरे को मशीदी आईसी आंसर थी, but I can show you next class. Do remind me. We can have 2-3 ICs distributed so that we see what a voltage regulator looks like exactly. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस सब्जेक्ट से एटलीस्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में एक वो आइडिया आ जाए कि आप उनसे डरे ना. So maybe tomorrow if you're going to develop some hardware based project, for example, you should have that confidence. नहीं मैं कर सकता हूँ. वही है इस सब्जेक्ट का मकसद मेरे हिसाब से. That you have another dimension or another skill added to your kitty. That fine, I can do maybe some hardware project as well. That's computer related students. थोड़ा सोचते हैं हार्डवेयर तो नहीं आता मैंने कहा, लेकिन वैसा नहीं है. हार्डवेयर उतना मुश्किल नहीं है. Understand the basic. You know the application, you can use it. Okay. Now this is an important topic altogether. Limiting circuits. क्या होते हैं limiting circuits? ये हम समझेंगे. फर्स्ट पॉइंट, इससे पहले जो हमने अभी सर्किट देखा, दैट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन. अगेन लिमिटिंग सर्किट भी एक एप्लीकेशन है. किसकी? ये किसकी एप्लीकेशन है लिमिटिंग सर्किट्स? डायोड. अब हमने कहा ना वो टॉपिक खत्म हो गया. वोल्टेज रेगुलेटर इज डन. नाउ वी आर गोइंग, बिकॉज़ हमारा मेन फोकस है डायोड. हमारा मेन फोकस है डायोड. बाकी सारी चीजें डायोड की एप्लीकेशन है. So this is another application of a diode. It's named as limiting circuit या diode clipper circuit. इसका काम होगा कि ये वोल्टेज या किसी भी वेव फॉर्म को एक वैल्यू तक लिमिट करेगा, उससे आगे नहीं जाने देगा. Somewhat like a regulation, but slightly different in its operation. So the diode clipper, also known as the diode limiter, is a wave shaping circuit का नाम भी इसको दिया जाता है. What I mean to say is that suppose I have a voltage waveform like this, okay? And मैं चाहता हूं कि इसका जो एक पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट, suppose this goes up to 10 volts. मैं चाहता हूं कि ये 0.7 या 0.7 वोल्ट से आगे जाए ही ना. ठीक? So I will use a clipper, and what this clipper will do, it will clip off some part of the signal, जो कि ये वाला पार्ट है, shaded part, and the end result will be just this wave. तो क्या हो गया? वेव की शेप चेंज हो गई ना. देखो मेरे पास ये साइनोसाइडल वेव थी. आप ये मत अभी सोचो कैसे हुआ, उसके लिए अगले 10 मिनट है. आप ये पहले समझो कि होना क्या है. होना ये है कि मेरे पास एक नॉर्मल वेव, आपसे बोल रहा हूं एक्चुअली, मेरे पास ये वेव फॉर्म है. ठीक, मैं चाहता हूं कि मैं इसको लिमिट करूं, इसके पीक को लिमिट करूं तो 0.7. सो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज अ क्लिपर, क्योंकि क्लिपर का काम ही ये है कि वो कुछ पार्ट ऑफ द सिग्नल क्लिप कर देता है. आइज ऑन बोर्ड. तो ये पार्ट क्लिप हो गया, टॉप वाला पार्ट, बाकी एज इट इज सारी वेव रही. तो दो काम हुए. एक तो इसने एक पार्ट को क्लिप कर दिया, देयरफॉर द नेम क्लिपर सर्किट या क्लिपर, एंड वेवफॉर्म की शेप भी चेंज हो गई, देयरफॉर द नेम वेव शेपिंग सर्किट. ठीक है. अच्छा, लेकिन हम एक चीज देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में भी कुछ इस तरह का ही होता है कि कुछ पार्ट ऑफ द सिग्नल क्लिप हो जाता है. हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ क्लिपर सर्किट सिंस ऑल वोल्टेजेस बिलो आर एलिमिनेटेड. तो हम ये कह सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर भी एक किस्म का क्लिपर ही है. ठीक है, सब टाइप बना गया. So this is about this clipping circuit. But one more point is that अगर हम एक चीज ध्यान दें, इससे ये भी काम हो रहा है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे सर्किट में 0.7 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज कभी आए ही ना पॉजिटिव वैल्यू, तो one more application can be over वोल्टेज प्रोटेक्शन भी हमें ऐसे सर्किट्स दे सकते हैं. ठीक है, दैट मींस वेव शेपिंग या क्लिपर सर्किट को हम एज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट भी यूज कर सकते हैं. सपोज मैं तो यहाँ पे एग्जांपल दी 0.7 वोल्ट की.
वन का सर्किट तन मे जरूरत 5 वोल्ट मगर मे इनपुट सप्लाई पे 7 वोल्ट अगर मैं 6 वोल्ट या 7 वोल्ट गई इसका मतलब क्या हो जाएगा ओवर वोल्टेज हो जाएगी ना वैसा ना हो मैं क्लिपर यूज कर सकता हूं ताकि मेरा जो सिग्नल का पॉजिटिव वैल्यू हो वो सेफ रेंज में रहे ठीक है जी अब आपको समझ आना शुरू होगा होता क्या है यहां से ठीक है जी नाउ रिफ्रेश योरसेल्फ प्लीज चलिए जी अब हम इसका ऑपरेशन समझेंगे एंड आई होप दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द क्लास दिस आइज ऑन बोर्ड प्लीज हमने यहां पे एक सिंपल साइनोसॉइडल वेव ली है जिसका वैल्यू है वीपी आप बना सकते हैं साथ साथ प्लीज मेक दिस आई वांट यू टू मेक द डायग्राम एट लीस्ट जल्दी से इसको बनाइए और बनाते बनाते ध्यान रखिए कि मैं क्या बोल रहा हूं हमारे पास आपने बनाई एक साइनोसॉइडल सिग्नल जिसका मैक्सिमम वैल्यू है Vp एंड मिनिमम वैल्यू है माइनस Vp ऑब्वियसली इट इज स्विचिंग बिटवीन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ये हम दे रहे हैं एज अ इनपुट टू दिस सर्किट ये है जिसमें एक रेजिस्टेंस R लगी हुई है और एक डायोड D1 लगा हुआ है इसका क्या करेंगे तो मसला है ठीक can you see the name on the top what is the name positive diode clipping circuit इस सर्किट का नाम है पॉजिटिव असली पॉजिटिव के बाद कॉमा है लेकिन इसमें डायोड क्लिपिंग सर्किट या पॉजिटिव हाफ या पॉजिटिव पार्ट एक्चुअली ये क्या क्लिप कर रहा है ये पॉजिटिव पार्ट क्लिप करेगा दैट्स व्हाई द नेम पॉजिटिव डायोड क्लिपिंग सर्किट दैट्स मैंने कहा पॉजिटिव के बाद एक कॉमा है क्योंकि पॉजिटिव से इसका मकसद समझ आ रहा है मैंने नहीं लिखा है कॉमा ना ही हम लिखते हैं लेकिन आपको समझाने के लिए पॉजिटिव डायोड क्लिपिंग सर्किट ठीक है अब अपनी नोटबुक्स पे नजर रखो बनाई डायग्राम सारी चलो ठीक है फिर बोर्ड पे ही नजर रखो देखो जी जब मेरा इनपुट स्टार्ट होता है फ्रॉम 0 ठीक तो क्या ये डायोड फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस है नहीं पता क्योंकि वोल्टेज क्या है 0 अब सपोज 0 से थोड़ा सा ऊपर ये चला 0.3 है बाय द वे ये डायोड जो है यहां पे ये एक प्रैक्टिकल डायोड है एंड प्रैक्टिकल डायोड के लिए V गामा कितना होता है 0.7 अगर ये सिलिकॉन है और 0.3 अगर ये जेरेनियम से बना है तो अच्छा यार कट इन वोल्टेज क्या आ गई व्हाट इज कट इन वोल्टेज शाबाश this is the advantage of writing those basic definitions and assignments of your own you at least remember majority of you remember what do I mean by cut in voltage or what is another name knee voltage that's great so cut in voltage ये होता है cut in voltage is that voltage जहां तक मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस अगर मैंने सप्लाई वोल्टेज उससे कम है भी वो डायोड फॉरवर्ड बायस नहीं होगा जब मेरी वोल्टेज होगी इक्वल और ग्रेटर देन द कट इन वोल्टेज मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो मैंने ये कहा कि इस टाइम वोल्टेज है 0.3 क्या ये डायोड फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस है या मैं कहूंगा फॉरवर्ड बायस तो नहीं है इसका मतलब माय इनपुट एंड आउटपुट विल बी सेम क्यों क्योंकि ये डायोड रिवर्स बायस मतलब ये ओपन सर्किट है एज इट इज ओपन सर्किट है तो इसका मतलब आउटपुट विल एग्जैक्टली फॉलो द इनपुट आई विल रिपीट मेरा डायोड अभी रिवर्स बायस मतलब क्या होता है ओपन सर्किट एंड सपोज ये मेरा वोल्ट मीटर यहां पे ये मेरे वोल्ट मीटर की टर्मिनल्स दो है तो वोल्ट मीटर मुझे क्या रीडिंग दिखाएगा सेम एज इनपुट राइट अगर इनपुट 0.3 है आउटपुट पे क्या आएगा who didn't understand this point raise your hand जिसको ये पॉइंट समझ नहीं आया raise your hand your face tells me the whole story so why not raising your hand आपसे बोलो मसला हां सच में तो फिर ऐसे एक्सप्रेशंस क्यों दे रहा है इतने दुखी वाले खुश है ना किसको समझ नहीं आया anyone who didn't got this point who wants me to repeat this इतना खुश भी नहीं यार बात दीजिए
So it's very simple. My diode is reverse bias because the voltage input voltage has not crossed 0.7. मेरे डायोड को I'll repeat this. यहाँ पे मैं रिपीट करूँगा because इसको ये समझ आएगा उसको सारे सर्किट्स आगे समझ आ गए अभी के अभी. So please give it a heed. I'm repeating one more time. मेरा डायोड जो ये है इसकी जो कट इन वोल्टेज है वो 0.7 है. कट इन वोल्टेज 0.7 होने का मतलब है कि अगर मुझे इस डायोड को फॉरवर्ड बायस कराना है या आई वुड से कंडक्ट कराना है इनपुट वोल्टेज 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए. ओके अब मैं कह रहा हूं अगर इनपुट वोल्टेज अभी 0.3 है तो डायोड क्या फॉरवर्ड बायस हो गया. इन वन वॉइस प्लीज. फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस. रिवर्स बायस. रिवर्स बायस मतलब है कि यहां पे जैसे कुछ है ही नहीं. यहां पे कुछ है ही नहीं. इनपुट वोल्टेज यहां 0.3 है. रेजिस्टर आउटपुट यहां पे मैं वोल्ट मीटर लगा रहा हूं. ये कितनी वोल्टेज दिखाएगा 0.3. So that is what is happening in this waveform. Say for example up to the point 0.3 the voltage is there. अब ये कहां तक वोल्टेज अब ये कहां तक फॉलो करेगा इसको 0.699 तक. राइट क्योंकि जब तक वोल्टेज 0.7 से ज्यादा या 7 के बराबर नहीं होगी तो ये डायोड क्या रहेगा रिवर्स बायस. रिवर्स बायस रहेगा तो आउटपुट will exactly follow the input. I would make it again. Suppose this is the input and this is the output. This is value eyes on board please. This is value 0.3. This is value 0.69. This is some another value. Now input has reached 0.7. Input say for example has reached 0.7. What will happen over here is now let me check what will happen. जब इनपुट हो गया 0.7 ये डायोड क्या हो गया फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस. फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायस मतलब है कि शॉर्ट सर्किट हो गया. दैट मींस इट इज एज गुड एज यहां पे ये कनेक्टेड है. ठीक है जी. Therefore what will happen at is we know that short circuit के across output क्या होता है 0. What will happen is that output will remain as it is static. It will not increase. ठीक है. It will not increase and the rest of the wave and ये कब तक रहेगा जब तक वोल्टेज 0.7 से कम ना हो. सपोज यहाँ पे सॉरी दिस इज 0.7 वैल्यू. ये समझाने के लिए आपको इतना डिस्क्रिप्टिव बनाने की जरूरत नहीं है असली. सो दिस इज 0.7. जब तक वोल्टेज अब 0.7 से ज्यादा है ये शॉर्ट सर्किट मेंटेन रहेगा. देयरफॉर आउटपुट हमेशा इन अ वे 0 ही आएगा. मतलब फिक्स रहेगा. आउटपुट 0 नहीं आ रहा है. वो प्रीवियस वैल्यू को रिटेन करेगा क्योंकि प्रीवियस वैल्यू क्या था 0.7. तो वो 0.7 आपको याद है ना डायोड सर्किट्स. व्हाट आई मीन टू से इज दैट जब ये शॉर्ट सर्किट है ना एक्चुअल यहां पे पोटेंशियल 0.7 है क्योंकि मैंने आपको कहा था इफ यू रिमेंबर डायोड सर्किट्स जब एक डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है इट एक्ट्स एज अ बैटरी ऑफ द वैल्यू which is the cut in voltage of that diode. ठीक है ना. go back to your diode circuits. ये अच्छे से समझ आ जाएगा. बट फिलहाल यहाँ पे समझने के लिए 0.7 पहुंचा उसके बाद शॉर्ट सर्किट के क्रॉस वैल्यू समझो 0 है तो वैल्यू फिक्स रहेगा. एंड जो ही इनपुट वोल्टेज 0.7 से कम हो जाएगी ये फिर से क्या करेगा फॉलो करेगा द इनपुट वेव which is exactly what is happening. ठीक है. थोड़ा सा ऑपरेशन समझ कर्स्टा डाउट मंगोस ना आसुम किए. अगर वो इन दिश देन talk to your friends first and then talk to me also if you feel like I'm available for that. No issues. यही कहानी इसमें जिसको अभी भी नहीं समझ आया वो इस थ्योरी को पढ़े. ठीक है. तो ये कौन सा इसने कौन सा पार्ट क्लिप किया पॉजिटिव या नेगेटिव. नाम क्या है इसका डन. नेक्स्ट वन. टाइम कितना बचा है अभी. आपकी इसके बाद ब्रेक है या क्लास है किसकी सपोज पढ़ना. अच्छा ठीक है रहने दो जब वो आएंगे तो तब देखेंगे हम. आपको जाना है. ओके लेट मी कवर दिस इन 4 minutes इंशाल्लाह बिकॉज़ दिस इज इजी नाउ. इस सर्किट का नाम क्या है. कौन सा वाला पार्ट क्लियर करेगा. डन. ओके नाउ व्हेन the positive cycle is coming here if you see the positive cycle यहां पे पॉजिटिव साइकिल है. ठीक है. डायोड फॉरवर्ड बायस कहां से होगा जब नेगेटिव वाला साइकिल अब -0.7 से ज्यादा हो सॉरी कम हो जाएगा. सो व्हेन आई हैव द पॉजिटिव साइकिल ओवर हियर इसका मतलब ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है ये नेगेटिव है.
तो ये पॉइंट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। डायोड रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस का मतलब ओपन सर्किट। दैट मींस जो इनपुट पे वोल्टेज है वो यहां पे आएगी, ठीक है। नाउ जब नेगेटिव साइकिल में जाएगा, अब ये वाला पॉइंट नेगेटिव है, ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है, ठीक है। यहां पे वोल्टेज है, इनपुट पे वोल्टेज है -0.3 फॉर एग्जांपल। -0.3 से क्या ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा? -0.3 है, मतलब -0.3 का मतलब ये वाला पॉइंट माइनस है, ये प्लस है। लेकिन अभी 0.3 हमें प्लस वाले साइड से ध्यान देना है, ठीक है। यहां पे अभी 0.3 है तो फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। कब फॉरवर्ड बायस होगा? जब ये वैल्यू 0.7 को क्रॉस करेगा। हालांकि एक्चुअली सप्लाई के हिसाब से तो वो -0.7 है, लेकिन यहां पे मैं देखूं मुझे पॉजिटिव टर्मिनल यहां से है, नेगेटिव यहां से, तो आई विल फोकस ऑन दिस साइड। सो व्हाट विल हैपन इज दैट जब 0.7 को क्रॉस करेगा, as you can see this point over here, I'll just connect the two. जब ये 0.7 को नेगेटिव साइकिल क्रॉस करेगा, वहां पे वैल्यू फिक्स्ड हो जाएगा टू 0.7 एट द आउटपुट। तब तक जब तक इनपुट साइकिल वापस 0.7 से और न बढ़े ऊपर की तरफ, क्योंकि मैं नेगेटिव साइकिल में हूं ना, जब तक वैल्यू -0.7 से कम है, ठीक है ना, तो वहां पे इनपुट और आउटपुट एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। सॉरी, ज्यादा इस बड़ा जब तक इनपुट का वैल्यू 0.7 से ज्यादा है, तब तक इनपुट आउटपुट एक दूसरे को फॉलो करेंगे। जो ही ये 0.7 से कम और मतलब ज्यादा नेगेटिव में चला जाएगा, तब जाके ये इस पार्ट को फ्लिप कर देगा, एंड इट विल नाउ अगेन स्टार्ट फॉलोइंग वंस the value increases beyond 0.7 या -0.7, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डायोड आपका रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन में लगा हुआ है। पिछली डायग्राम में डायोड कैसे था? ये कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो? इस टाइप डायोड इस तरह है। मकसद क्या है इसके पीछे? क्योंकि हमें इस टाइम नेगेटिव साइकिल फ्लिप करना है, ठीक है। सो पॉजिटिव फ्लिपर के लिए अराउंड द डायरेक्शन ऑफ द सर्किट ही समझो डायोड भी यहां पे रिवर्स है, सो द नेम इज नेगेटिव फ्लिपर, ठीक है। असाइनमेंट फॉर यू इज इसका ऑपरेशन बताओ क्या होगा, इसका कैसे ये ऑपरेशन आया। टेक अ फोटोग्राफ ऑफ दिस एंड शेयर इन द ग्रुप। इसके ऑपरेशन को समझना है, ये कैसे पॉजिटिव हाफ भी क्लिप कर रहा है, नेगेटिव हाफ भी क्लिप कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज द एंड ऑफ टुडेस लेक्चर, यू कैन स्टॉप हियर।